سب اپنی بچیوں والے، میں بھی کسی کی بختاور ہوں، میں بھی کسی کی آسفا ہوں. مطلب ان کے گھر میں جو بیٹیاں ہیں وہ بیٹیاں ہیں، ہم کسی کی بیٹیاں نہیں ہیں، ہم کسی کی عزت نہیں ہیں. ان کو مریم نواز تو پاکستان کی بیٹی لگتی ہے، پر ہم جو انصاف کے لیے در بدر ہیں ہم ان کو نظر نہیں آتے ہیں. میں ان سرداروں سے ڈرتی نہیں ہوں. مجھے اگر خوف ہے تو اللہ کی ذات کا ہے، میں کسی سے ڈرنے والی نہیں ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میری جب بھی موت ہوگی گولی سے ہی ہوگی. یہ سردار اور جاگیردار کسی کو بھی نہیں چھوڑتے. یہ ریاست مدینہ ہے، کیا کسی عام آدمی کو ریاست مدینہ میں انصاف مل سکتا ہے؟ میں ان کو چھوڑنے والی نہیں ہوں. میں یہ ضرور واضح کروں گی کہ اگر مجھے اللہ نہ کرے پاکستان کی عدالتوں میں مجھے انصاف نہیں دیا گیا تو جو انصاف فراہم کرنے والے ادارے جن کو اللہ پاک نے آج پاور دے کر بٹھایا ہے تو میں ان سب کی شکایت کروں گی اللہ سے، اور میں انشاءاللہ روزے محشر ان سب سے میں حساب لے کے رہوں گی. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان. آج میں پاکستان کی اس بیٹی کے ساتھ موجود ہوں جن کا نام ہے رباب. عمر تھی ان کی 18 سال، لیکن ہوا کی اس بیٹی نے انصاف لینے کے لیے سر پر کفن باندھا اور 200 سے 250 کے قریب عدالتوں کی پیشیاں بھگت چکی ہیں. ہر 15 دن بعد ایک نئی تاریخ دے دی جاتی ہے. یہ جب بھی عدالت میں جاتی ہیں تو ننگے پاؤں جاتی ہیں. یہ انٹرویو میں بھی ننگے پاؤں بیٹھی ہیں. یہ ننگے پاؤں کیوں بیٹھی ہیں انٹرویو میں، یہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے. 26 جنوری 2018 کو ان کے بھائی کی شادی ہونا تھی. بہنیں بھائی کے لیے مہندی کے بڑے تال لیے شادی کی خوشیوں میں شریک تھی. پورا خاندان بیٹے کی شادی کے لیے بےتاب تھا. 17 جنوری 2018 کو اندرون سندھ کا ایک ضلع جس کا نام دادو ہے، اس کی تحصیل مہڑ میں فیوڈلزم کے نتیجے میں جاگیردارانہ اور مدبرانہ جابرانہ نظام میں سے سندھ کے ایوان کے اقتداروں میں بیٹھے 2 ایم پیز ہیں جن کا تعلق چانڈیو فیملی سے ہے. انہوں نے ان کے باپ کو، ان کے چچا کو، ان کے 65 سالہ بزرگ دادا کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. ان کی دادی کو بیوہ کیا گیا. دادی کو 2 جوان بیٹوں کی موت کا رنج برداشت کرنا پڑا. ایک ہی گھر سے 3 لاشیں اٹھی تو پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا. گھر میں کوئی مرد نہ رہا تو انصاف کے لیے ہوا کی بیٹی رباب نے سوچا کہ میں جب تک اپنے دادا، باپ اور چچا کے قاتلوں کو، جو کہ بڑے جاگیردار ہیں، جو کہ سندھ اسمبلی کے سٹنگ ایم پیز ہیں، ان کے خلاف عدالتوں میں جاؤں گی. ننگے پاؤں عدالتوں میں کیوں جاتی ہیں، کتنی پیشیاں بھگت چکی ہیں اور انصاف کی منتظر ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی کہانی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی. رباب، آپ کے باپ کا مرڈر ہوا، آپ کے چچا کا مرڈر ہوا، آپ کے دادا کا مرڈر ہوا، ایک قبائلی خاندان سے تعلق ہے اور آپ ہماری قبائلی بہن ہیں. یہ سٹوری ہے کیا، کہانی ہے کیا، کن لوگوں نے مارا آپ کے گھر سے 3 لوگوں کو؟ میں عدالتوں کو بہت مقدس سمجھتی ہوں. میں اپنی ماں کی جگہ سمجھتی ہوں اور میں جب جاتی ہوں تو میں باوضو جاتی ہوں اور میں اسی لیے ننگے پاؤں جاتی ہوں کہ میرے پاؤں کی جو گندی جوتیاں ہیں وہ میں اندر مقدس عدالتوں میں نہ لے کے جاؤں. تو ہمیشہ میں یہی کہتی ہوں کہ عدالتیں جو ہیں وہ مظلوموں کو انصاف دینے کے لیے یہ ایک ہی پلیٹ فارم ہے مظلوموں کے پاس. میرے گھر میں جو 3 میں نے جنازے اٹھائے ہیں، میرے پیاروں کے قتل کا جو ہے انصاف مجھے وہی عدالتیں دیں گی، تبھی میں عدالتوں کو اتنا مقدس سمجھتی ہوں. آپ ان کے پاؤں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی انہوں نے جوتے نہیں پہنے ہوئے. سردی تھی، جوتے میں نے بھی پہنے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ جوتے پہن لیں. انہوں نے کہا کہ یہ ٹوپک اتنا مقدس ہے کہ مجھے اپنے باپ، اپنے چچا، اپنے باپ کے باپ یعنی میرے دادا جو 3 قتل ہوئے، ہماری گھر کی دہلیز پر میرے بھائی کی شادی تھی، ہم مہندی، ڈھولک اور خوشیاں منا رہے تھے. ہمارے گھروں میں شہنائیاں بجنی تھی، ہمارے گھروں سے جنازے اٹھے. فیوڈلزم کے اگینسٹ کھڑی ہوئی ہوں اور کبھی بھی اپنا مقدمہ واپس نہیں لوں گی. عدالتوں سے محبت کی وجہ سے ننگے پاؤں جاتی ہوں کہ کہیں میری جوتیوں کی گندی خاک اس مقدس عدالت کو نہ لگ جائے. کتنی پیشیاں اب تک بھگت چکی ہیں عدالت میں؟ 3 سالوں سے میں یہ کیس لڑ رہی ہوں اور تقریباً 200 پیشیاں ہو گئی ہوں کیونکہ ہر 15 دنوں کے بعد پیشی ہوتی ہے. جب پیشیاں ہوتی ہیں، آپ ننگے پاؤں جاتی ہیں تو کتنی دور پیدل چل چل کے جاتی ہیں اور جو دوسری پارٹی ہے اس کے کتنے لوگ عدالتوں میں کھڑے ہوتے ہیں؟ میں جب عدالت پہنچتی ہوں تو تقریباً ان کے ساتھ 400 لوگ ہوتے ہیں. ان کے ساتھ اسلحہ ہوتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں اور میں ایک نہتی لڑکی عدالت پہنچتی ہوں اور میں یہ 4 سالوں سے یہ پریشر برداشت کر رہی ہوں. میرا ایمان ہے کہ میرے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے اور میرے ساتھ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی رضا میں لے کر جاتی ہوں. میں ایک ان کی کنیز ہوں اور میں نے ان سے سیکھا ہے، یہ کربلا کے میدان سے سیکھا ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہ ہو تو آپ حق کے لیے ایک عورت ہو کر
आप आवाज बुलंद कर सकती हैं, तो मैंने ये चीज उनसे जरूर सीखी है। मेरे साथ मेरी माँ की दुआएं हैं। आपको तारीखें दे दी जाती हैं, अब तक 200 से 250 तारीखें पड़ चुकी हैं। आप घर जाती हैं, दादी अम्मा पूछती नहीं है कि आज मेरे 2 जवान बेटों के कातिलों का क्या बना, मेरे हस्बैंड का क्या बना? यानी उस बुजुर्ग खातून को भी बेवा किया गया, उसके 2 लखते जिगर उससे जुदा किए गए, इनको यतीम किया गया, चचा के 2 छोटे मासूम बच्चों को यतीम किया गया, फिर बाप और चचा जो मकतूल हैं उनको भी यतीम उनके बाप यानी इनके दादा को मारकर किया गया। दादी का रिएक्शन क्या होता है? मुझे सिंध के लोगों ने एक बहादुर बेटी का टाइटल दिया है, सिंध की बहादुर बेटी। जब घर पहुंचती हूँ ना तो मेरी हिम्मत वहाँ पे जवाब दे देती है कि जब मैं दादी के सामने जाती हूँ और वो मुझसे पूछती है कि बेटा आज क्या बना, तो मेरे पास लिटरली अल्फाज नहीं होते। और अभी भी सॉरी मैं बात नहीं कर पा रही। मुझसे जब दादी पूछती है मैं उन्हें क्या कहूँ कि दादी आज भी मुझे तारीख दी गई है। 3 सालों में मेरे लिए जो सबसे मुश्किल तरीन काम होता है उस वक्त मैं दादी को जवाब नहीं दे पाती। तारीख पर एक नया बहाना दादी के साथ करती हैं कि मिल जाएगा इंसाफ। बिल्कुल मैं ऐसे ही कहती हूँ कि दादी इंशाल्लाह मैंने वचन किया है, मैं आपको आपके शहीदों के आपके बेटों के लिए इंसाफ में लेके दूंगी, दादा के लिए मैं इंसाफ लेके आऊंगी, मैं अपने बाबा के लिए इंसाफ लेके आऊंगी। घर के बड़े मेरे दादा मेरे चचा मेरे वालिद साहब को शहीद किया गया तो मुझे ही निकलना पड़ा इंसाफ की खातिर, तो मैं निकली और मैं ये स्ट्रगल कर रही हूँ। और आप ये स्ट्रगल करती रहेंगी मरते दम तक। मैं इन सरदारों से डरती नहीं हूँ, मुझे अगर खौफ है तो अल्लाह की जात का है, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। अगर किसी ने आपका मर्डर कर दिया तो मुझे उस चीज की परवाह नहीं है, क्योंकि कम से कम ये है कि जब से मैं खड़ी हूँ तो सिंध में लोग अवेयर हुए हैं और वो फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट बात करना शुरू हुए। असल में टारगेट यही है कि मैं फ्यूडलिज्म खत्म करना चाहती हूँ अपने सिंध से, ये जुल्म और सितम में खत्म करना चाहती हूँ। अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, 2 से 2.5 साल हो गए आपको अदालत के धक्के खाते हुए। अदालत के पास प्रूफ हैं या वो जमानत पर हैं? शिकवा क्या है आपको अदालत से? मेरे पास गवाह मौजूद है, मेरे पास सबूत मौजूद है, मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ। किन लोगों के सामने गोलियां मारी गई थी? मेरे चचा हैं, आई विटनेस हैं, 2 और बाबा के कजन हैं और शॉपकीपर्स वगैरह हैं, सब ने ये स्टेटमेंट्स दिए हैं। ये दिन दिहाड़े कत्ल किया गया था। 26 जनवरी पे मेरे बड़े भाई की शादी थी और घर में ये समझे कि पहली शादी थी। मेरे बाबा भी बहुत एक्साइटेड थे और अचानक से 17 जनवरी पे ये वाकया हो गया। मतलब एक खुशी का माहौल जो था वो पूरा मातम में बदल गया। आपके वालिद साहब चचा और दादा को निशाना क्यों बनाया गया? उसकी बुनियादी वजह क्या थी? ये सरदार हमेशा चाहते हैं कि सारे लोग हमारे गुलाम बन के रहें और मेरे बाबा पढ़े लिखे थे तो वो कभी नहीं चाहते थे कि हम किसी की जो है गुलामी करें। और मेरे वालिद साहब को ये कमेटी बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट, क्योंकि मेरे बाबा एक बार कुछ एप्लीकेशंस वगैरह लेकर उस सरदार के पास गए और यही कहा कि आपको तेल और गैस की रॉयल्टी मिलती है और ये आपकी ट्राइब के, क्योंकि सरदार हमेशा माना जाता है कि वो बाप की जगह होता है। तो मेरे वालिद साहब कहते हैं कि अगर आपने किसी को आजमाना है तो आप उसके साथ क्लोज हो और आपको पता चल जाएगा उनका। तो मेरे वालिद साहब भी इनके साथ क्लोज थे। जब क्लोज हुए जाहिर है वो सरदार मानते हैं एक ट्राइब की। ये आप लोग मजारे थे, नौकर थे? बिल्कुल, ये हर किसी को ट्राइब के लोगों को ऐसे ही समझते हैं कि ये ताबेदार है हमारे। तो मेरे वालिद साहब जब इनके साथ क्लोज हुए तो बाबा ने देखा कि वो हमें नीचे बिठाते हैं, कोई इज्जत नहीं देते। मेरे वालिद साहब की इवन स्पीच पड़ी हुई है कि उसमें कह रहे हैं कि हम खाते पीते अपने घर से हैं और ये हमें अपना मोहताज बना रहे हैं, वोट भी हमसे लेते हैं। क्योंकि देखे ना, इनको सरदार बनाने वाले भी हम ही लोग हैं, इनको MPS बनाने वाले भी हम ही लोग हैं, इनको ताकत हम लोग देने वाले। तो बाबा ने कहा कि हम इन्हें सरदार नहीं मानते, ये किस हिसाब से सरदार मान रहे हैं। ये बिल्कुल एक ठीक बात कर रही हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। डेमोक्रेसी और फ्यूडलिज्म 2 ऑपोजिट चीजें हैं। डेमोक्रेसी में आप वोट्स के जरिए से इलेक्ट करते हैं अपने मुंतखब नुमाइंदों को, जबकि फ्यूडलिज्म में जो काउंट है या जो एक बड़ा लैंडलॉर्ड आदमी है जिसकी ज्यादा जमीन है उसी की बदमाशी है, उसी की सरदारी है, उसी की जागीरदारी है, उसी की जमींदारी है, उसी की जमीन है, उसी का खुदा है, उसी का आसमान है, वो जो चाहेगा वही होगा। यूरोप में फ्यूडलिज्म जब अपनी इंतहा पर पहुंचा तो द हिस्ट्री ऑफ फ्यूडलिज्म बाय डेविड, एक बड़ी खूबसूरत किताब है, उसको आप जरूर स्टडी करें। यूरोप में फ्यूडलिज्म के दौरान कोई शख्स फ्यूडलिज्म के खिलाफ बात करना तो बहुत दूर की बात है, उस टर्म को भी यूज नहीं करता था। जागीरदार उनके गले काट दिया करते थे, उनको जिंदा दफन कर देते थे, उनके पैरों में जंजीरें बांधकर घोड़ों के पीछे लटकाकर घसीटा जाता था। लेकिन वक्त जूं जूं तब्दील हुआ, तरक्की याफ्ता मुमालिक ने अपने अंदर से फ्यूडलिज्म को खत्म किया। इमरान खान साहब रियासत मदीना की बात करते हैं और रियासत मदीना में मैं ये समझता हूँ रियासत मदीना की इस
बच्ची, इस बेटी, इस बहन को इंसाफ दिलाना भी अदालतों का काम है। अदालतें अपना काम बेहतरीन अंदाज में कर रही हैं, लेकिन इसको एक टेस्ट केस बनाएं और इसका ट्रायल शॉर्ट करके इस बच्ची को इंसाफ फराहम किया जाए, जो अदालतों की दहलीज पर बावजू होकर बीबी ज़ैनब की रिदा लिए वहां पर कनीज बनी खड़ी रहती हैं और अदालतों के एहतराम में आज तक इनके मुंह से उफ नहीं निकला। और कहना यह भी है कि हर पेशी पर जो महीने में 2 से 3 होती हैं, 400 से जायद लोग उन मुल्जिमान के साथ अदालतों में धन दनाते हुए आते हैं, असलहे लेकर आते हैं। इनकी उम्र यूनिवर्सिटीज, मदारिस, कॉलेजेस में पढ़ने की थी। इन्होंने काले कोट का मुंह देख लिया, इन्होंने अदालतों का मुंह देख लिया और इरादा सिर्फ यही है कि अपनी दादी को एक दिन जाकर जरूर बताऊंगी कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे 2 जवान बेटों की मौत का बदला पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ की सूरत में ले लिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक इंसाफ जो है इनके दहाने पर नहीं पहुंचा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कि साबिक चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, आप उनकी गाड़ी के आगे भी आई थी, वो क्या मामला था? उस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे और मुझे पता चला कि वो कराची रजिस्ट्री आ रहे हैं और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि सिंध पुलिस टोटली कॉम्प्रोमाइज थी, पूरा रिकॉर्ड टेम्पर हो चुका था। जब कराची पहुंची तो मैंने देखा वहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड था और सारे लोग अपनी शिकायतें लेकर खड़े थे कि चीफ जस्टिस साहब सुमोटो एक्शन ले। तो उस क्राउड में ज़ाहिर साकिब निसार साहब की नजर मुझ पे नहीं पड़ती। मैंने अपनी जान की परवाह ना की और मैंने साकिब निसार साहब की गाड़ी रोकने की कोशिश की, पर मुझे बड़ा अफसोस है इस चीज का कि पाकिस्तान की इस बेटी को उस जगह पे भी नहीं देखा गया। साकिब निसार साहब की गाड़ी 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी, क्योंकि मैंने एक रिस्क लेकर उनकी गाड़ी रोकने की कोशिश की। वो सिटिंग चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के। उल्टा वहाँ पे ये हुआ कि पुलिस वालों ने मेरे बाजू से पकड़कर मुझे सड़क के उस पार फेंक दिया कि आप चली जाएं यहाँ से। तो मैंने हिम्मत फिर भी नहीं आ रही। फिर आप दादू से सफर करती हुई कराची पहुंची थी कितने घंटे का, और चीफ जस्टिस साहब की गाड़ी के आगे आई और पुलिस वालों ने उठा के सड़क के उधर फेंक दिया, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही? बिल्कुल, मैं दादू से 4.5 घंटे का सफर करके गई थी और सुबह के टाइम में तकरीबन 8 बजे में जाकर वहाँ पे खड़ी हो गई। आपने कुछ गिफ्ट भी किया था उनको, एक सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हुआ था, वो क्या था? मुझे पता चला 1 मंथ के बाद कि साकिब निसार साहब फिर सखर आ रहे हैं। वहाँ जब मैं गई तो मैंने स्टेज पे जाकर उनको एक छोटा सा कुरान शरीफ गिफ्ट दिया, और वो कुरान शरीफ में इसलिए लेके गई थी कि मैंने जाकर उन्हें कहा कि सर मैं आपसे इंसाफ की भीख मांगने आई हूँ, क्योंकि मैं एक पाकिस्तान की बेटी हूँ और अभी अल्लाह पाक ने आपको एक ताकत दी है कि आप मुझे इंसाफ दे सकते हैं। अगर आज आपने मुझे इंसाफ नहीं दिया तो रोज़े महशर में अल्लाह पाक से आपकी शिकायत करूंगी। मैंने ये अल्फाज साकिब निसार साहब को कहे थे। साकिब निसार साहब ने मुझे इंसाफ नहीं दिलाया, पर वो मुझे जस्ट सिक्योरिटी देकर चले गए। मतलब वो चीफ जस्टिस थे, उनको भी ये नॉलेज थी कि सिंध के सरदार कितने इन्फ्लुएंशियल है, जस्ट सिक्योरिटी देकर वो भी रिटायर हो गए। आपको सिक्योरिटी देकर चले गए जिनका काम आपको इंसाफ देना था। क्या उनको भी लगता था कि आपको कोई खतरा है? ये कितनी गहरी बात है कि लम्हे के लिए सोचिए, और कितनी एक पिंचिंग बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो और वो आपको इंसाफ देने की बजाय सिक्योरिटी देकर चले जाएं। यानी उसको भी लगता है कि इस मुल्क में जो शहरी है उसकी जानो माल की हिफाजत अदलिया यकीनी नहीं बना सकती या इदारे यकीनी नहीं बना सकते, वो उसने खुद ही कोई सिक्योरिटी ले लेनी है, उसको थ्रेट है। यानी उनको लगता था आपको कोई खतरा है। तो ये बात ने आपको पिंच नहीं किया? मुझे तो ये बड़ी अजीब सी लग रही है। यही मुझे शिकायत है कि एक सिटिंग चीफ जस्टिस को भी लगता है कि एक बच्ची जो है 18 साल की, वो इंसाफ के लिए दर बदर है। मतलब सिंध के सरदार इतने इन्फ्लुएंशियल है कि इसकी जान को खतरा है। तो देखिए, मैंने पहले भी यही वर्ड्स कहे कि मुझे घर बैठे इंसाफ मिलना चाहिए था, मुझे इंसाफ नहीं दिया गया। सिक्योरिटी देने का मतलब आप भी समझते हैं, सब समझते हैं कि मतलब उनको भी, उनके भी नॉलेज में ये था कि वो कितने इन्फ्लुएंशियल है। वो सिटिंग MPs है, इस वक्त भी वो MP हैं। तो पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो या किसी बड़े स्टेक होल्डर से नहीं आप मिली, उनकी कंप्लेन नहीं की उनको? मुझे पीपल्स पार्टी से वही शिकायत है कि उन्होंने मेरे सर पे दस्ते शफकत कभी नहीं रखा। उन्होंने उल्टा वो अपने दोनों MPs को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सब अपनी बच्चियों वाले। मैं भी किसी की बख्तावर हूँ, मैं भी किसी की आसफा हूँ। मतलब इनके घर में जो बेटियां हैं वो बेटियां हैं, हम किसी की बेटियां नहीं है, हम किसी की इज्जत नहीं है। इनको मरियम नवाज तो पाकिस्तान की बेटी लगती है, पर हम जो इंसाफ के लिए दरबदर हैं, हम इनको नजर नहीं आते हैं। सियासतदानों से, जागीरदारों से, और ये मुदब्बिराना, जाबिराना, जमींदार सिस्टम जिसको इंग्लिश में फ्यूडलिज्म कहते हैं, इसके अगेंस्ट खड़े होना, आपको पता है ये खतरों से खाली नहीं है। आपकी जान इंतहाई सिक्योरिटी रिस्क पर है। बिल्कुल मुझे अंदाजा है, और मैं आज ये रिकॉर्ड पे लाना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि मेरी जब भी मौत होगी गोली से ही होगी। ये सरदार और जागीरदार किसी को भी नहीं छोड़ते। मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि सारे इकट्ठे हो जाएं, मुझ मजलूम का। ये बात क्यों कहती हैं कि आपकी मौत गोली से ही होगी? अल्लाह ना करे आपको गोली लगे, अल्लाह करे आपको इंसाफ मिले और हमारे निज़ाम इंसाफ में बैठे
मुनसिफ, मैं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पर्सनली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके अल्फाज सीनों को चीरते हैं कि मुझे जब भी कुछ हुआ तो मुझे गोली लगेगी। एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची कह रही है। मैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, इमरान खान साहब से या कोई भी हमारी इस वीडियो को देख रहा है इक़्तिदार के ईवानों में बैठा शख्स, तो इस बच्ची को जरूर इंसाफ दिलवाएं। स्टोरी इंतहाई दर्दनाक है। 2 साल से अदालतों के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन मजाल है कि कोई शख्स इनको सुनता हो। हमारा सिस्टम मुझे लगता है फेल हो चुका है। एक बच्ची इंसाफ के लिए एक हिम्मत करके सरदारों और जागीरदारों के खिलाफ खड़ी है। इसमें मैं नाउम्मीद नहीं हुई हूँ, पर मैं एक बच्ची हूँ, मैं थक गई हूँ। मैं कितनी स्ट्रगल करूंगी, मैं कितना लड़ूंगी। जस्टिस से, इमरान खान साहब से या किसी रियासत मदीना के दावेदार से कुछ कहना चाहें तो कह सकती हैं। इमरान खान साहब से, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कि सर आपकी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है और पाकिस्तान की एक बेटी इंसाफ के लिए दरबदर है, और ये रियासत मदीना है। क्या किसी आम आदमी को रियासत मदीना में इंसाफ मिल सकता है? मेरा केस जो है अदालतों के लिए टेस्ट केस है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर इसमें आप सो मोटो एक्शन ले। ऐसा ना हो कि मैं थक जाऊँ। मैं थकने वाली नहीं हूँ, मैं हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ। मैं तो अपनी हिम्मत करके लड़ रही हूँ। 3 सालों तक ये केस जो है उसका फाइनल डिसीजन नहीं आ सका है, तो आप सोचे कि हमारे मुल्क में जो आम आदमी है उनके साथ क्या होता होगा। आपने एक लफ्ज यूज किया कि मैं एक बच्ची हूँ और मैं थक गई हूँ, ये ना हो मैं थक जाऊँ, इससे क्या मुराद है? मैं इसलिए कह रही हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं थक जाऊँ, क्योंकि मैंने आज तक हिम्मत नहीं आ रही। मैंने बहुत सी मुश्किलात को फेस किया है। जो मेरी उम्र थी 18 साल से 21 साल की उम्र में, ये मेरी खेलने कूदने की उम्र थी। मेरी जो उम्र की बच्चियां हैं वो आज तक अपने फैमिली के साथ, अपने बाबा के साथ नखरे करती हैं। मैं इनको छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं ये जरूर वाज़ेह करूंगी कि अगर मुझे अल्लाह ना करे पाकिस्तान की अदालतों में मुझे इंसाफ नहीं दिया गया, तो जो इंसाफ फराम करने वाले इदारे जिनको अल्लाह पाक ने आज पावर देकर बिठाया है, तो मैं उन सब की शिकायत करूंगी अल्लाह से, और मैं इंशाल्लाह रोजे महशर इन सब से मैं हिसाब लेके रहूंगी। जिन जिन लोगों ने इनको इंसाफ दिलवा सकते हैं इंसाफ ना दिलवाया, तो ये कहती हैं कि मैं अल्लाह की बारगाह में रूबरू खड़ी होंगी अल्लाह के सामने और शिकायत करूंगी इन लोगों की कि इन लोगों ने मुझे इंसाफ नहीं दिया। मेरा बाप मार दिया, मेरा चचा मार दिया, मेरा दादा मार दिया, और तो और नंगे पांव उस मुकद्दस अदालत आलिया की मैं तहसीन करती रही, अदब करती रही, एहतराम करती रही, कर्ब से गुजरती हुई, थकी नहीं, अकी नहीं, झुकी नहीं, ना झुकूंगी कभी। और जब लगेगी मेरे सीने पर गोली लगेगी, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में इनके साथ इस तरह का कोई सानहा पेश आए, इससे पहले कि ये हादसा सानहा बन जाए और सानहे के बाद किसी बड़े सानहे को जन्म दे, नई नस्लों में नफरतें और कदूवतों के बीज बोए। मेरी तमाम स्टेक होल्डर से एक मर्तबा फिर से हाथ जोड़कर अपील है कि उम्मे रुबाब को जरूर इंसाफ फराहम किया जाए। फ्यूडलिज्म जैसी लानत जब तक पाकिस्तान से खत्म नहीं होगी, यहाँ तब्दीली नहीं आएगी। आज हमारे इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए मेजोरिटी में लोग वो हैं जिनके असर रसूख हैं। द लार्ज लैंड ऑनिंग फैमिलीज जो पाकिस्तान की हैं, इन्होंने अपना तशख़्ख़ुस ऐसा बना लिया है कि इनके सामने अगर कोई शख्स सोफे पर टांग रखकर बैठना तो बहुत दूर की बात, इनके कदमों में अपने गंदे कपड़ों के साथ बैठ जाए और उसकी मिट्टी उनके सफेद काटन और लट्ठे के कपड़ों पर लग जाए, तो यकीन करें वो उनको जूते मारते हुए अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि जब दुनिया से जाएंगे तो सफेद कॉटन या लट्ठा ही उनके जिस्म की जीनत बनेगा। दोनों हाथ कफन से बाहर रख लिए जाएं तो खाली हाथ आप इस दुनिया से जाएंगे, और मनो मट्टी के नीचे आपके कफन को मैला वो मट्टी करेगी जिस मट्टी का कर्ज उतारने के लिए पाकिस्तान के इदारों में बड़े मुंसिफ बैठे हैं, बड़े सियासतदान बैठे हैं, वो लोग बैठे हैं जिनकी बात सुनी जाती है। हम अपने प्लेटफॉर्म से इस बच्ची की जितनी आवाज बुलंद कर सकते थे हमने की है। मैं एक मर्तबा फिर से आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आजम इमरान खान से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम किया जाए, कि इससे पहले आपकी शिकायत भी अल्लाह की बारगाह में लगे। अल्लाह हाफिज।